Very good morning to all of you and welcome to this exciting webinar on 800 megawatt supercritical thermal power plant technology. I am Surendra Kumar, Principal TPSDI Mundra and your host for this webinar. And today with us is our expert Mr. Pradeep Sarkar, who has more than 25 years of experience in uh, thermal operations and maintenance. So this power plant is India's first 800 megawatt power plant, and it started its operation in 2012. The first unit started in 2012. So since then, we are generating around 4,000 megawatt power plant power from this unit for our country, and approximately, which is around 2% of the India's uh, power requirement. So it's a great honor for Tata Power to have started this unit at first in India, because earlier than that there was no such big unit was available in India. Right now so many units are coming, but we have more experience in the operation of such type of power plant, at least in India. So I welcome Mr. Pradeep Sarkar on this webinar. Good morning, Mr. Sarkar. Good morning, sir. Good morning, all of you. So, yeah, okay. so Once again, good morning to all. In this webinar, though it's a very less time to complete the session in 1 hour, we will try that we can impart maximum knowledge to all of you who are connected with us. So Yes, since sir. it's a 800 megawatt power plant and it's a very big units are there, and one unit is generating 800 megawatt. So I would like to ask Mr. Sarkar that what are the various components of this power plant, since it's a very huge power plant. So how about the boiler technology, what we have used in this power plant, Mr. Sarkar? Okay. Yes, sir. We are using supercritical thermal power technology in our plant's VGPL. I am going to some brief description about boiler and technologies. Can I start, sir? Yes, please continue. Okay. Okay. Thank you. This is our UMPP Mundra power project overview. It is India's first 800 megawatt supercritical thermal power plant. We have 5 units. You can see in this picture 5 units, 800 megawatt per each unit. Total generating capacity is 4,000 megawatt. It is coal-based thermal power plant. You can say it is non-conventional. Conventional power plant. You can see the 4,000 megawatt were generating in very small area is required. It is a big advantage of conventional power plant. तो सुपर क्रिटिकल, पहले आपको ऐसे सुपर क्रिटिकल क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए. सुपर टेक्नोलॉजी का जब हम बात करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज सुपर क्रिटिकल पावर जनरेशन प्लांट. तो आपको मालूम है जो वाटर डायग्राम है, वाटर डायग्राम में जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वाटर की, तो प्रेशर है 22.1 MPa एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इज 374 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हम ऐसे बोल सकते हैं सुपर and ultra supercritical plants operate at temperature and pressure above the critical points of water. तो एक T5 डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं इस पे. देखिए हम स्टार्ट करेंगे 1 से 1 to 2.
then CP work. 2 to 2s is regeneration. 2s to 3 is boiler superheating. So 2 to 2s in this diagram, we added heat to the water to regenerate to extraction stream of turbine. 2s to 2-3 heat gained by our gained by steam by coal fuel which is we are using that time. So coal, normally we are using coal. So 2s in regenerating system, after getting heat up, 2s system, 2s point 295 डिग्री सेंटीग्रेड. उसके बाद हम जब हीट ऐड करते हैं, फर्दर हीट ऐड करते हैं, वो हीट अब देखिए 568.5 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर हमने 251 डिग्री से 251 बार तक हम लेके जाते हैं उसमें. उसके बाद 3 to 4 ये जो आप कार्ब में देख रहा है, ये HP टर्बाइन मतलब हाई प्रेशर टर्बाइन में वर्क डाउन हो रहा है. फर्दर हम क्या करते हैं, 4 जो पॉइंट्स आए हैं, 4 पॉइंट से 4 to 5 पॉइंट जो फर्दर हम हीटिंग करते हैं. हीटिंग तो उसका हम क्या बोलेंगे, रीहीटिंग. यहीं पे भी हीट गेन हो रहा है स्टीम की. तो 4 to 5 में जब हमारा 5 पॉइंट्स पे पहुंच जाता है तो स्टीम का टेम्परेचर 595 डिग्री सेंटीग्रेड और 59.1 बार में आता है. तो 5 to 6 पॉइंट वर्क डन बाय IP टर्बाइन एंड LP टर्बाइन. तो 5 to 6 में जब हम वर्क डन ले लेते हैं, उसके बाद हमारा कंडेंसर में लास्ट ब्लेड जो है LP टर्बाइन वो इससे एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो जाता है कंडेंसिंग के लिए. कंडेंसिंग 6 to 1 जो कंटिन्यूस कूलिंग वाटर थ्रू हमने इसको कंडेंसर में कूलिंग करते हैं. और उसका बार तो ये जो प्रेशर है, प्रेशर आप देखिए 80 मिली बार, एब्सोल्यूट प्रेशर जो है 80 मिली बार. तो टोटल जो डायग्राम में दिखा रहा है, डायग्राम से आपको पता लग रहा है जैसे हम एक बार स्टीम को रीहीट करते हैं और स्टीम का टेम्परेचर जो है, फर्स्ट जो हम बॉयलर में हीटअप कर रहा था, बॉयलर जो फर्स्ट स्टेज में जो हम हीट कर रहा था 568.5 डिग्री 251. फर्दर रीहीटिंग का बाद हमें 595.6 डिग्री और 59 बार का प्रेशर में हम वर्क डन कराते हैं. इससे क्या फायदा होता है, इसके एडवांटेज क्या है, आपके नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ. एडवांटेज ऑफ सुपर क्रिटिकल जनरेशन प्लांट में एक हायर साइकिल एफिशिएंसी अब 45% जो है आपको सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के साथ मिलेंगे. अगर आपको सब क्रिटिकल के साथ आप जाएंगे तो 45 डिग्री आपको मिलना बहुत मुश्किल है. उस केस में आपकी लगभग 28 और 32% तक ही आपको मिलेंगे. तो सुपर क्रिटिकल में क्या है, कोल जो कंजम्पशन है वो भी आपको लेस लगता है. तो लेस कोल कंजम्पशन पर मेगावाट आवर एक यूनिट जनरेट करने के लिए नॉर्मली जो हम उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कोल कंजम्पशन, मतलब कितना किलो अमाउंट आपको कोल का कंज्यूम होना चाहिए पर यूनिट जनरेट करने के लिए. लेस एमिशन, क्योंकि कोल कंजम्पशन आपको कम होते जा रहा है, इसी कारण से कोल का जो एमिशन होता है वो आपको लेस होगा. लेस ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन, auxiliary power consumption is less in supercritical technologies. तो CGPL में लगभग 7.5% आपको कुल ऑक्सिलरी पावर का कंजम्पशन होते हैं. तो इन थंब रूल में 10% तक आपको ऑक्सिलरी कंजम्पशन आप मान के चल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो होता है आपको बता रहे CGPL के 7.5% ऑक्सिलरी पावर का कंजम्पशन हो रहा है. लेस वाटर कंजम्पशन, वाटर का कंजम्पशन भी काफी कम रहता है. जैसे मेकअप वाटर हम अगर लेंगे तो 1% हमारे अप्रोक्सीमेट 1% आता है मेकअप वाटर का कंजम्पशन. लेस पर मेगावाट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट,
क्योंकि एट एक छोटा यूनिट से मतलब एक सिंगल यूनिट से आप काफी मेगावाट जनरेट कर सकते हैं। इसी कारण से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर आप उस हिसाब से देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी कम होता है। तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर जो हमारा CGPL जो इंडिया फर्स्ट एकदम जो सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का बॉयलर हम इंस्टॉल किए थे, उसमें दोसन हेवी इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड सप्लायर थे। तो टेक्निकल फीचर्स हम देखेंगे वन थ्रू सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। हम ये बोल सकते हो वन थ्रू सुपर टेक्नोलॉजी क्या है, बोलो आपको सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्या है, जिस मतलब वर्क डन हो जो क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर का अभाव में जो वर्क डन करते हैं वही है सुपर क्रिटिकल वन थ्रू सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। मतलब वाटर का कोई रिसर्कुलेशन करने की जरूरत नहीं रहता, मतलब कोई ड्रम मतलब बेसिक आप बोल सकते हैं कि जो वाटर स्टोरेज का लगे जो स्ट्रीम ड्रम रहता है, यहीं पे कोई स्ट्रीम ड्रम नॉर्मल जब रनिंग कंडीशन में रहता है तभी कोई भी एक मतलब सर्कुलेशन करने के लिए कोई स्टोरेज टैंक वो बॉयलर ड्रम ऐसे कुछ भी नहीं रहता है। तो वंस वाटर बॉयलर हीट पंप से जैसे प्रोसेस में फ्लो होता है, हीटअप करके डायरेक्टली आपको स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ही पार्ट में हो जाता है, बोलते हैं इसको वंस में सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हम बोलेंगे टू पार्ट्स, बॉयलर का टू पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया है। तो मतलब क्या है, आपको जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, आप पिक्चर आप थोड़ा सा देखेंगे तो पिक्चर में टू पार्ट फर्नेस से जब बाहर तो फ्लो गैस आता है तब उसको टू पार्ट्स पे हम दोनों पार्ट से लेके जाते हैं इसके टू पार्ट्स। बैलेंस ड्रॉप सिस्टम आपको मालूम है, जो फोर्स ड्रॉप सिस्टम होता है, इंड्यूस ड्रॉप सिस्टम होता है। हमारा ये जो बॉयलर का जो टेक्नोलॉजी से हम ड्रॉपिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसमें बैलेंस ड्रॉप सिस्टम। तो बैलेंस ड्रॉप सिस्टम मतलब कंबाइंड ऑफ फोर्स ड्रॉप एंड इंड्यूस ड्रॉप। और फर्नेस जो प्रेशर है वो फर्नेस में हम स्लाइटली लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखते हैं। उसके बाद वेट बॉटम टाइप, वेट बॉटम टाइप हमारा जो बॉयलर का जो पूरा जो फर्नेस है वो फर्नेस हैंगिंग कंडीशन में है। हमारा जो थर्मल एक्सपेंशन होते हैं बॉयलर के थर्मल एक्सपेंशन लोअर साइड में होता है, क्योंकि ऊपर में हमने उसको हैंगिंग करके रख दिया। लोअर बॉटम में आपकी एक्सपेंशन होता है थर्मल एक्सपेंशन, और इन साइड से मतलब एयर इनग्रेस ना हो। मैंने आपको अभी बताया था जो हमने फर्नेस प्रेशर जो है स्लाइटली नेगेटिव है, इसी कारण से एटमॉस्फेरिक एयर आपके फर्नेस के इनसाइड में जा सकता है। उसको अरेस्ट करने के लिए आपको वाटर सीलिंग सिस्टम रहते हैं। तो वाटर सीलिंग बॉटम टाइप को जो है वाटर का सीलिंग सिस्टम रहते हैं। और जो कोल कंजम्पशन हो रहा है, कोल कंजम्पशन के टाइम जो क्लिंकर फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो रहेगा कोल पे, वो कोल हीटअप होने के बाद मतलब जो एस जनरेशन हो रहा है, एस जनरेशन का जो मेल्ट हो जाता है, वो मेल्ट एस क्या करते हैं हमारे बॉटम साइड में आ जाता है, ड्रॉपलेट हो जाता है, और वहीं पे भी हमें वाटर से क्वॉन्चिंग कर देता है, इसलिए बॉटम वेट का फॉर्मेशन होता है। पल्वरेज फ्यूल फायर, फ्यूल पर आपको मालूम है डिफरेंट टाइप वे में हम फ्यूल को फायर कर सकते हैं, जैसे स्टोकर फायर है। उसके बाद आपको ABC बॉयलर, सी बॉयलर टेक्नोलॉजी होता है। उसके बाद हमारा पास जो है पल्वराइज फ्यूल पैनल, इसका मतलब क्या है, जो हम कोल को यूज कर रहे हैं उसको पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। पाउडर फॉर्म होने के बाद उसमें फर्दर हम जो कोल नोजल होता है, कोल बर्नर বা कोल नोजल, कोल बर्नर थ्रू हमने उसको बॉयलर इनसाइड का बॉयलर में पानी बर्निंग कराते हैं। ये जो प्रोसेस है उसको हम पल्वराइज फ्यूल फायर बॉयलर बोलेंगे। तो हमारा ये टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल फीचर्स में मेन जो फीचर्स है, वन थ्रू सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, टू पास बैलेंस ड्रॉप सिस्टम, सिंगल रीहीट मतलब एक ही रीहीट हम कर रहे हैं, और उसके बाद वेट बॉटम टाइप एंड पल्वराइज फ्यूल फायर। तो बॉयलर ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, हमारे पास जो बॉयलर है, बॉयलर का जो आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर जाएंगे तो एक आता है 100% बॉयलर मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग। इस लेवल पर आप कंटिन्यूस रेटिंग जो पैरामीटर्स आप अचीव कर पाएंगे वो आपको बताया जाता है। तो कुछ ही पैरामीटर्स के ऊपर हम आज बात करेंगे, जैसे मेन जो पैरामीटर्स आपको है, मेन स्ट्रीम
temperature and pressure. Reheat temperature and pressure. Main heat temperature 568.5 degrees centigrade at 251 bar. Reheat temperature and pressure 595.6 degrees centigrade at 59.1 bar. Mainstream flow 2525.76 ton per hour. Reheat flow 2016 ton per hour. और फीड वाटर इनलेट टू इकोनोमाइजर इनलेट 295 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे ये जो पहले जो फर्स्ट जो प्रेशर का मेन स्ट्रीम प्रेशर का बात कर रहे हैं हम, तो एक तो आपकी मतलब डायरेक्ट जो फ्यूल कंजम्पशन कर रहा है वो फ्यूल कंजम्पशन से जो स्टीम जनरेट कर रहा है फर्स्ट स्टेज में उसको प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसका बाद हम स्टीम को क्या करेंगे एचपी टरबाइन के ऊपर लेके जाएंगे। समथिंग वर्क डन होने के बाद फिर उसमें जो एक्सट्रैक्शन है हाई प्रेशर टरबाइन की उसमें फर्दर हम बॉयलर की तरफ लेके जाएंगे स्टीम को। स्टीम में तब जाके आपको रीहीट होगा और रीहीट में आपकी जो प्रेशर रहेगा वो टेम्परेचर 595.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और 59.1 बार जो है उसी प्रेशर आपकी मेंटेन करेंगे। तो आप यहीं पे देखिए मेन स्ट्रीम फ्लो और रीहीटर फ्लो में मतलब अगर ऐसा आप देखेंगे तो रीहीट फ्लो में काफी चेंजेस आपको दिख रहा है। मतलब स्टीम का जो है काफी डिफरेंस है। मतलब लगभग आप देखेंगे तो 500 टन पर आवर का जो शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल नहीं बोलेंगे, इसे प्रोसेस में हम यूज कर रहे हैं। तो रीहीट में फ्लो कम है इसलिए कारण जो है आईपी टरबाइन में जो स्टीम है एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके हम जो वाटर हीटर में यूज करते हैं। मतलब फर्दर जो वाटर है वाटर को रीजेनरेटिव करने के लिए मतलब स्टीम मतलब टेम्परेचर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट लगभग 500 जो टन स्टीम का है हम उसको रीजेनरेटिव का स्टीम पे उनके यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको रीहीटर फ्लो जो है वो पैरामीटर आपको कम दिखने के लिए आ रहा है। और फीड वाटर टेम्परेचर के डिफरेंट हीटर जो है एलपी हीटर, एचपी हीटर, डीएरेटर, यहीं पे सभी पे आपको टेम्परेचर गेन होता है। तो एट इकोनॉमिकल इनलेट पॉइंट में आपको टेम्परेचर जो राइज होता है वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी आपको एक दिखा रहा हूँ 800 इंटू 5 जो टोटल 4000 मेगावाट पावर प्लांट है। एक कंट्रोल रूम का आपको व्यू दिखा रहे हैं। तो कंट्रोल रूम में देखिए नंबर ऑफ कंट्रोल इंजीनियर जो है यहीं पे आपकी हमेशा पैरामीटर्स जो है वो वॉच करते हैं और इन केस एनी क्रिटिकल सिचुएशन अगर हो जाए तो उसके क्रिटिकल सिचुएशन पे हैंडल करने के लिए उन्हें एप्रोप्रिएट एक्शन लेता है। तो ऐसे करते हुए मतलब कंटिन्यूअस पैरामीटर्स मेंटेन भी करते हैं और फर्दर आगे और ऑपरेशन इंजीनियर से ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है जैसे सेफ शटडाउन और सेफ स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल सिचुएशन होता है आपके सेफ शटडाउन, क्योंकि कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन में पूरा पैरामीटर्स को अंडर कंट्रोल में रखते हुए जो शटडाउन होता है वही आपका सेफ शटडाउन, जिसमें आपकी एनवायरनमेंट भी पॉल्यूटेड नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट भी नहीं होंगे और जो आपकी इक्विपमेंट भी डैमेज नहीं होगा। ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेशन इंजीनियर से रहता है, वो कंटिन्यू पैरामीटर्स को मेंटेन करते हुए 24 आवर्स मतलब शिफ्ट वाइज जो इंजीनियर्स का ग्रुप है वो इसमें एक्टिविटीज में जुड़े हुए रहता है। ये कंट्रोल रूम का व्यू है। ऐसे हमने 2 कंट्रोल रूम व्यू दिखा रहा हूँ आपको पिक्चर में जो दिख रहा है। ऐसे करके आपको 5 यूनिट्स है, तो सिंगल एक कंट्रोल मेन कंट्रोल रूम यूनिट आपको ऐसे 5 यूनिट कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल आपको दिखेंगे। और इसमें पूरा व्यू आप दिखा रहा हूँ, उसमें आपको जो 2 व्यू दिखा पाया था 2 कंट्रोल पैनल, एक लगभग पूरा व्यू आपने दिखा रहा है। तो इसमें देखिए जो कंट्रोल रूम दिख रहा है आपकी शायद हमारा पास जो ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं 1 डे और थर्मल पावर प्लांट का भी एक ट्रेनिंग होता है। तो उसमें आप देखिए हम कंट्रोल रूम में जाते हैं और कंट्रोल रूम का जो शिफ्ट इंचार्ज रहता है उनको उनके बारे में अच्छी तरह से और पता समझाते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट प्राइमरी
फोर कंपोनेंट्स कोई भी पावर प्लांट में जाइए, हम ये नहीं बात कर रहा हूँ सुपर क्रिटिकल व सब क्रिटिकल बॉयलर पे जाइए, आप कोई भी पावर प्लांट में चार कंपोनेंट जो रहता है मेन कंपोनेंट, एक तो बॉयलर जहाँ पे हीट गेन होता है, वहाँ पे हीट इन होता है, इसके बाद एक टरबाइन जहाँ पे वर्कआउट होते हैं, वर्कआउट जो होता है उसको जनरेटर रहता है, जनरेटर के साथ आपकी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद कंडेंसर जो टरबाइन का एक्स्ट्रा करते हैं, एग्जॉस्ट होता है स्टीम, वो स्टीम को कंडेंस करने के लिए कंडेंसर का जोड़ी है। फर्दर जो है आपकी जो इक्विपमेंट का हार्ट ऑफ द बॉयलर, हाफ ऑफ द बॉयलर बोला जाता है, वो है बॉयलर हीट पंप। तो ऐसे सर्कुलेशन जो क्लोज सर्किट एक आपको दिख रहा है पिक्चर में, वो क्लोज सर्किट में आपके थर्मल पावर प्लांट आपको कंटिन्यूस काम करते हैं। तो आपने एक पावर प्लांट में जो मेन जो कंपोनेंट्स है, मेन कंपोनेंट्स है, हम उसको बोल सकते हैं बॉयलर, टरबाइन एंड जनरेटर आर द मेन प्लांट। तो सपोर्टिंग सिस्टम नोन एज बैलेंस ऑफ ड्राफ्ट और बैलेंस ऑफ प्लांट, तो BOP फॉर मेन प्लांट। तो मेन प्लांट में आपको बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर है, उनको सपोर्ट करने के लिए कंटिन्यूस उसको रनिंग रखने के लिए जो सपोर्टिंग आपको रिक्वायरमेंट है जो प्लांट का, वो बैलेंस ऑफ प्लांट हम बताएंगे। तो क्या होता है वो उसमें बैलेंस ऑफ प्लांट में कुछ आपको बता रहा हूँ, जैसे कोल हैंडलिंग प्लांट जो CHP, एस हैंडलिंग प्लांट AHP, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WTP, बॉयलर फीड वाटर सिस्टम BFWS, कंडेंसर वाटर सिस्टम, हाइड्रोजन generation plant, condenser and cooling, auxiliary cooling water system, fuel oil system, compressed air system, electrical system and firefighting system। तो ये सभी क्या है आपको बैलेंस ऑफ प्लांट BOP में आते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे हम। तो CHP के ऊपर हम भी बात करेंगे। एज हैंडलिंग प्लांट में जो कोल कंजम्पशन होता है, कोल कंजम्पशन के बाद जो एज जनरेट हो रहा है, तो ह्यूज अमाउंट में एज जनरेट होता है, तो उसी को क्या कंटिन्यू एवाकुएट भी करने की जरूरत है। अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ गया एज हैंडलिंग प्लांट में, बाय एवाकुएशन सिस्टम आपको अप्रोप्रिएट नहीं है, तो थर्मल पावर प्लांट 100% एफिशिएंसी चलाना काफी डिफिकल्टीज होता है। तो एज हैंडलिंग प्लांट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। जैसे CHP है, कंटिन्यू कोल सप्लाई करेगा आपको हीट जनरेट करने के लिए, और आफ्टर बर्निंग ऑफ कोल उसका बाद जो एज जनरेशन हो रहा है, वो एज जनरेशन को एवाकुएट करने के लिए एज हैंडलिंग प्लांट। तो फर्दर जो है मेकअप वाटर, बस स्टार्टअप का टाइम जो वाटर का रिक्वायरमेंट बाय कूलिंग का, कूलिंग सिस्टम के लिए जो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, तो वाटर ट्रीटमेंट का जो प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो बॉयलर के लिए जो वाटर है, काफी ट्रीटमेंट होने के बाद आपकी अचीव होता है बॉयलर वाटर जो आपके पास RO प्लांट रहते हैं और DM प्लांट रहता है। तो दोनों प्लांट मतलब आपके जो वाटर का रिक्वायरमेंट है WTP प्लांट, उसमें आपको फुलफिल करता है मेन प्लांट के लिए। बॉयलर फीड वाटर सिस्टम, ये भी एक हार्ट ऑफ द बॉयलर, जिसके कारण से आपको वाटर का जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन अब में रह जाता है आपकी जनरेशन में। कंडेंसेट वाटर सिस्टम जो है, कंडेंसेट वाटर सिस्टम कूलिंग वाटर का सिस्टम को कंटिन्यू जो स्टीम एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, उसमें जो कंडेंसर में कूलिंग करने के लिए व्यवस्था में आपको कंटिन्यू वाटर फ्लो को रखा जाता है। हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट, हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट आपको क्या है, जो 800 मेगावाट पावर प्लांट है, तो उसमें जो जनरेटर है, स्टेटर रहते हैं आपकी और रोटर रहता है, उससे कूलिंग सिस्टम नॉर्मली क्या है, वो एयर से हमें कूलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जनरेशन का जो कैपेसिटी है हाई कैपेसिटी में है। तो उसी का जो कूलिंग के जो पर्पस है, उसको फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन गैस की हम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट का चाहिए। तो फ्यूल ऑयल सिस्टम, जो स्टार्टअप और सपोर्ट ऑयल सिस्टम को आपको पूरा करने के लिए प्लांट है। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम आपके पास ढेर सारा कंट्रोल सिस्टम रहता है, जिसको न्यूमेटिक सिस्टम जो है
उसको कंप्रेस एयर सप्लाई करने के लिए आपकी इसको भी जरूरत है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आपको तो एवाकुएट करने का टाइम बहुत सारा एक नेटवर्क रहता है इलेक्ट्रिकल की, जैसे जनरेटर ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, स्टेशन ट्रांसफार्मर, स्विच यार्ड, ये सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत है। उसका फायर फाइटिंग सिस्टम, तो फायर फाइटिंग सिस्टम का क्या रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली तो कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन सेफ्टी सेफ्टी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, तो उसमें आपको जाना ही चाहिए। अगर फायर फाइटिंग सिस्टम अगर इनकेस आपकी पावर प्लांट में वर्किंग में नहीं है तो आपको क्या है प्लांट चलाना काफी रिस्की हो जाता है। तो फायर फाइटिंग सिस्टम आपको आपकी जितने इम्पोर्टेंट हमारा बॉयलर टर्बाइन का है उतना इम्पोर्टेंट हम लोग फायर फाइटिंग सिस्टम का साथ भी देते हैं। तो प्रेशर पार्ट ऑफ द बॉयलर, फॉलोइंग प्रेशर पार्ट आर बॉयलर और बिलो जैसे है इकोनोमाइजर है, बॉयलर ड्रम व स्टीम सेपरेटर, वाटर वाल्व सिस्टम, सुपर हीटर, रीहीटर। तो ये सारे क्या है अपने बॉयलर का प्रेशर पार्ट में आते हैं। तो सारे बॉयलर प्रेशर पार्ट जैसे हैं आपकी क्या रेगुलर बेसिस पे नॉर्मली ईयरली आपकी बॉयलर को शट डाउन किया जाता है। अच्छी तरह से मेंटेनेंस करने के बाद ये सारे सिस्टम जो बता रहे हैं इनका वाटर से हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। हाइड्रो टेस्ट में जो नॉर्मल वर्किंग प्रेशर होता है उसको 1.2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स तक आपकी प्रेशराइज किया जाता है। वहीं पे अगर आपको प्रेशर विथस्टैंड करने के लिए कैपेसिटी रहता है, कोई लीकेज नहीं हो रहा है, तब जाके आपको क्या फर्दर आप बॉयलर को स्टार्टअप कर सकते हैं। व आपकी जो बॉयलर इंस्पेक्टर इन टेस्टिंग का टाइम आपको बॉयलर इंस्पेक्टर आते हैं। बॉयलर इंस्पेक्टर आकर पूरी आपके बॉयलर के इंस्पेक्शन करते के साथ साथ जितने भी प्रेशर पार्ट्स हैं वो प्रेशर पार्ट्स को चेक करते हैं। तो प्रेशर पार्ट चेक करने प्रेशर का जो कैपेसिटी है आपकी बॉयलर का जो प्रेशर विथस्टैंड करने की कैपेसिटी अगर एप्टीट्यूड है या एक्सेप्टेबल लेवल है, तब जाके आपकी बॉयलर को रीसर्टिफाइड किया जाता है और रीसर्टिफाइड होने के बाद ही आप बॉयलर को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ कंपोनेंट्स हम बॉयलर के बारे में भी जानेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट है इकोनोमाइजर, दूसरा बॉयलर ड्रम और स्टीम सेपरेटर, वाटर वाल्व सिस्टम, सुपर हीटर एंड रीहीटर, बॉयलर फीड वाटर पंप, डिएरेटर। उसको जो कोल कोल को जलाने के लिए बर्निंग करने के लिए जो ईआर का जरूरत है वो ईआर आपको फोर्स्ड फैन एंड प्राइमरी ईआर फैन से मिल जाता है। और आफ्टर जो गैसेस जनरेशन है कोल बर्निंग का बाद जो गैस जनरेट हो रहा है वो गैस को इंड्यूस ड्राफ्ट थ्रू बाहर चिमनी के थ्रू एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद सील एयर फैन, कोल फीडर, कोल मिल, कोल बर्नर एंड स्टार्टअप बर्नर। तो एलडीओ एंड एचएफओ हम बता रहे हैं। एलडीओ एंड एचएफओ, एलडीओ फॉर आपकी स्टार्टअप बर्नर और एचएफओ फॉर सपोर्टिंग बर्नर। और एयर प्री हीटर फर्दर आपका एयर प्री हीटर आपको ईएसपी होता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको कंपोनेंट्स रहता है, लेकिन जो मेन कंपोनेंट उससे एक लिस्ट बना है वो आर सम ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर बेटर ऑपरेशन ऑफ बॉयलर। तो इकोनोमाइजर का जो फ्लो गैस है पहले बताते थे, इकोनोमाइजर हम क्यों यूज करेंगे। इकोनोमाइजर जो है फ्लो गैस का जो हीट लॉसेस होता है, मतलब आपको चिमनी थ्रू बाहर एडजस्ट हो जाता था, तो उसमें आपकी हीट लॉस को सबसे ज्यादा जो गेन करता है फ्लो गैस से इकोनोमाइजर। बॉयलर ड्रम व बॉयलर सेपरेटर का जो है उसमें मेन जो वर्क है जो बॉयलर के लिए जो वाटर का रिक्वायरमेंट, मतलब ये सब क्रिटिकल बॉयलर के लिए आपकी एक्सेप्टेबल है। जो सब क्रिटिकल बॉयलर के लिए जो वाटर का जो सर्कुलेशन होता है तो उसमें जो स्टोरेज का एक वाटर स्टोरेज जैसे होना चाहिए, तो वो बॉयलर ड्रम है। वाटर वाला को हीट गेन कर रहा है। सुपर हीटर या फिर आफ्टर हीट स्टीम जनरेशन के वर्क फर्दर हीटिंग के लिए है। बॉयलर के काम को तो आपको जानते ही है, बॉयलर का हार्ट है और ये कंटिन्यू आपको बॉयलर में वाटर फीड करते हैं। डिएरेटर में जो डीजल ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस रहता है उसको रिमूव करने के लिए डिएरेटर का यूज होता है।
फोर्स्ड अप फैन और इंड्यूस्ड अप फैन का ऑलरेडी बता दिया है। सील एयर फैन का बता रहा हूँ, जहाँ पे सीलिंग सिस्टम है, जैसे आपकी गेट्स जो रहता है, तो गेट्स में जो एयर डक्ट का सिस्टम है, जो गेट्स है वह कंट्रोल यूनिट्स जो रहता है एयर को कंट्रोल करने के लिए, उनके सीलिंग का रिक्वायरमेंट है। तो और ऐसे जहाँ पे भी सीलिंग करने का रिक्वायरमेंट है वो सील एयर प्रेशर। कोल फीडर, जो कंटिन्यू आपको कोल फीडिंग करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो कोल फीडर। कोल मिल, जहाँ पे कोल को पाउडराइज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो कोल बर्नर और स्टार्टअप बर्नर, एयर क्रिएटर। अगर जो हीट फ्लो गैस मिल जाता है उसी को भी हम वेस्टेज नहीं होने देते हैं, उसके एयर को हीट करके हम मतलब एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। तो अभी एक देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा लाइन डायग्राम ऑफ वंस थ्रू बॉयलर्स। लाइन डायग्राम हम स्टार्ट करेंगे। जो मेन स्टीम टेम्परेचर आप देखिए 550 डिग्री सेंटीग्रेड जो स्टीम जो हो रहे हैं वो हम कहाँ पे भेजेंगे, गोस टू HP टर्बाइन, हाई प्रेशर टर्बाइन में से जो निकल रहा है, जैसे लास्ट स्टेज जो है, लास्ट स्टेज से जब स्टीम को निकाला जाता है तो स्टीम वो आपकी जाता है रीहीट सिस्टम की तरफ। तो रीहीटिंग होता है, मतलब फर्दर इसको जो टेम्परेचर राइज किया जाता है। टेम्परेचर राइज करने के बाद एट कांस्टेंट प्रेशर में, उसके बाद आरपी टर्बाइन वर्क डन होता है। आरपी टर्बाइन का जो एग्जॉस्ट है वो आपको एलपी टर्बाइन में पहुंच जाता है। तो एलपी टर्बाइन काफी साइज में बिगर साइज होते हैं। तो इसी कारण से लेफ्ट साइड में जो ब्लेड है वो काफी बिग साइज का ब्लेड्स होता है। तो प्रेशर भी उसका क्या लास्ट स्टेज में जो है प्रेशर भी काफी रिड्यूस हो जाता है। तो फर्दर जो है हमारे पास जो टेम्परेचर और प्रेशर का क्रॉसपोंडेंस में जाएंगे, तो लास्ट स्टेज के बाद फर्दर अगर उसको अगर प्रेशर ड्रॉप कर देगा तो वाटर फॉर्मेट का जो है वाटर ड्रॉपलेट क्रिएट हो जाता है, जो ब्लेड को आपको डैमेज पहुंचा सकता है। इसी कारण से उनका प्रेशर और टेम्परेचर को हम ऐसे मेंटेन करके एडजस्ट करते हैं जिसमें 98% तक आपकी ड्राई स्टीम रहता है, ओनली 2% जो है वाटर वेट स्टीम आपको उसमें मिलेगी। तो फर्दर इसमें आपके क्या है, तो टरबाइन में कंडेंसर में आपको एग्जॉस्ट स्टीम चले जाते हैं और एग्जॉस्ट स्टीम का जो कंडेंसर में है ये कंडेंस हो जाता है। तो कंडेंस के लिए कूलिंग वाटर सिस्टम हमारे पास है, तो वो ह्यूज क्वांटिटी कूलिंग वाटर सिस्टम ऐसे पास होता है। एक हमारा जो 800 मेगावाट का पावर प्लांट है उसका एक जो अगर 100% आपको रन करने चाहते हैं तो 1,26,000 लीटर क्यूब पर आवर का कूलिंग वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। फिर इसमें जो कंडेंस होने के बाद वो हॉट ऑयल में आता है। हॉट ऑयल में जैसे मतलब जो कंडेंस वाटर का हम कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद CEP एक्सट्रैक्शन पर, तो कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप थ्रू हम जो फर्दर जो वाटर को हम पास कराते हैं CPU, कंडेंसर पॉलिशिंग यूनिट, जिसको बोलते हैं कंडेंसर पॉलिशिंग। व्हाट इज कंडेंसर पॉलिशिंग यूनिट? क्योंकि ये आपके सुपर क्रिटिकल वाला टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं और इसी में जो वाटर का क्वालिटी है वो काफी मतलब आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है, अदरवाइज का बॉयलर का जो है लाइफ आपकी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तो वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम कंडेंसर पॉलिशिंग यूनिट का हम यूज करते हैं, जहाँ पे आप ये बता सकते हैं एक छोटा एक DM प्लांट है। DM प्लांट का ऐसे एक छोटी सी DM प्लांट जैसे ही बिहेवियर करते हैं। तो वाटर का प्यूरिफाई करने के बाद जो वाटर आपको आउटपुट में आ रहा है, आउटपुट सिस्टम LP हीटर में जा रहा है, तो फर्दर हीट जनरेट हो रहा है। उसके बाद फर्दर LP हीटर के बाद आपको डीएरेटर में जाते हैं, जहाँ पे आपको बताया था ऑक्सीजन, जो डिजल्व ऑक्सीजन एंड जो अदर गैसेस जो है वो गैसेस को आपको यहीं पे रिमूव किया जाता है। आफ्टर दैट आपकी बॉयलर फीड पंप का जो आउटपुट है डिस्चार्ज जो है HP हीटर से हम पास कराते हैं, और HP हीटर से पास करने के बाद जो फीड वाटर टेम्परेचर है 150 डिग्री से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज करा के फर्दर हम
बॉयलर का इकोनोमाइजर का जो इनलेट पॉइंट है वहीं पे हम उनको सप्लाई करते हैं। तो वंस लाइन डायग्राम वंस टू बॉयलर को आपको हम बताया। उसके बाद हम चलेंगे 800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल बॉयलर की थोड़ी सी बात करेंगे। ऑलरेडी आपको मालूम है सुपर क्रिटिकल बॉयलर ऑपरेट्स अबव सुपर क्रिटिकल प्रेशर 2 to 1.2 बार। लिवरेज टू साइकिल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम इसको सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। स्टार्टअप सिस्टम प्रोवाइड टू स्टार्ट the boiler in wet condition and raise the parameters to achieve dry mode operation। तो स्टार्टअप का टाइम आपको दो कंडीशन रहता है, एक वेट कंडीशन और उसका बाद आपको आता है ड्राई मोड ऑपरेशन कंडीशन। वेट कंडीशंस क्या होता है, जैसे हमने सुपर क्रिटिकल को टेक्नोलॉजी हिसाब से हमारा बॉयलर डिजाइन किया है, लेकिन जब हम स्टार्टअप करते हैं तो स्टार्टअप का टाइम तो उतना प्रेशर और टेम्परेचर अपना नहीं रहता है, तो हम क्या ग्रेजुअली उसको क्या प्रेशर को और टेम्परेचर राइजिंग करते हैं। तो उस टाइम जो कंडीशन है हमारा सब क्रिटिकल मतलब जो एज ए सब क्रिटिकल बॉयलर जैसे वर्क करता है उस प्रकार का वर्क करता है। तो धीरे धीरे जैसे हम ग्रेजुअली उसको प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब जाके हमारा क्या सुपर क्रिटिकल का जो पॉइंट्स है वो प्रेशर और टेम्परेचर वो अचीव हो जाता है। उसका बाद जो फर्दर हीट अप हो जाता है उसका बाद आपको आ जाता है, उस टाइम आता है सुपर क्रिटिकल कंडीशन में, अबव सुपर क्रिटिकल कंडीशन, और उसमें आपको ड्राई मोड ऑपरेशन जहाँ पे आपकी कोई भी वाटर रिसर्कुलेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कोई बॉयलर ड्रम का जरूरत नहीं है। तो लेकिन जब हमारा सब क्रिटिकल कंडीशन में रहता है तब जाके हम तो डायरेक्ट सुपर क्रिटिकल पॉइंट्स में नहीं आता है। सब क्रिटिकल पॉइंट्स में सब क्रिटिकल बॉयलर जैसे बिहेवियर कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास का छोटे स्टोरेज टैंक है। स्टोरेज टैंक में बहुत स्मॉल क्वांटिटी वाटर हम उसमें स्टोरेज होता है, सिर्फ ये जो वेट कंडीशन जो है वेट कंडीशन को अचीव करने के लिए। फर्दर जैसे प्रेशर और टेम्परेचर राइज हो गया, अबव सुपर क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर को ऊपर जा जाता है, तब ये जो हम स्टोरेज टैंक की जो बात कर रहा है उसका कोई मतलब फंक्शन नहीं रहता है, तो हमारे जो सिस्टम है ड्राई मोड ऑपरेशन में आ जाता है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हम हमेशा मेंटेन करते रहता है, अदरवाइज क्या है आपके बॉयलर का लाइफ द बॉयलर डैमेज हो सकते हैं, इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है। जो पैरामीटर्स है एक मिनिमम वाटर फ्लो हमेशा आपको 35% से ज्यादा होना ही चाहिए। अगर इसको बिलो टेम्परेचर बिलो परसेंट में अगर वाटर फ्लो आप रहेगा सर्किट का साथ, तब आपको क्या है जो हीट है मतलब जो वाटर ट्यूब है सुपर हीटर कॉइल्स है वो आपको ओवर हीटेड हो जाएंगे, और ओवर हीटेड होने के बाद उनको जैसे मेटल टेम्परेचर राइज हो जाता है तब जाके उसका उस्टैंड जो प्रेशर उस्टैंड कैपेसिटी भी उसके हिसाब से कम हो जाता है, बॉयलर को रैप्चर हो जाएगा, मतलब ट्यूब ब्लास्ट हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, लीकेज होएगा, फर्दर कुछ भी हो सकता है बॉयलर पे। इसी कारण से का मिनिमम वाटर फ्लो जो है आपकी बॉयलर में अबाउट 35% जो है टोटल जो वाटर का रिक्वायरमेंट है 35% आपके कंटिन्यू सर्किट में रहना चाहिए। तो इसमें मतलब क्या है जो आपको जो वाटर वाल का जो ट्यूब है वो ट्यूब आपको जो कूलिंग होता है, कूलिंग आपको वाटर का जो फ्लो होता है बस स्टीम का जो फ्लो होता है उसी से आपको टेम्परेचर को मेंटेन रहता है। अदरवाइज उसका स्टीम फ्लो अगर कोई कारण से कम रिड्यूस हो जाता है या अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है मतलब स्टीम फ्लो नहीं हो पा रहा तब भी आपकी क्या है जो ट्यूब्स में कॉइल्स है वो ओवरहीट होने का पूरी संभावना रहता है और उसी कारण से आपको जो है ब्रेकडाउन में चले जाता है बॉयलर। फिर इसके बाद हम आते हैं जैसे बॉयलर स्टार्टअप की बात किया तो बॉयलर स्टार्टअप कैसे करेंगे और हमारा जो फ्यूल का रिक्वायरमेंट है फ्यूल रिक्वायरमेंट मेन प्राइमरी फ्यूल कौन सा है। तो प्राइमरी फ्यूल हमारे कोल है, नॉर्मली ये हमारे इंपोर्टेड कोल रहता है, इंडोनेशियन से आते हैं।
और बॉयलर स्टार्ट ऑफ फ्यूल LDO मतलब लाइट डीजल ऑयल है। जब हमारे एकदम स्टार्ट हो रहा है, इनिशियली जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का लगभग उतना ही टेम्परेचर है हमारे बॉयलर का, फर्नेस का एंड अदर इक्विपमेंट्स की, तब हमने कहा जो स्टार्टअप करते हैं तो LDO से। LDO के स्टार्ट होने के बाद हमने जो उसको जैसे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है उसका टेम्परेचर, जैसे फर्नेस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तब जाकर हमने क्या है सपोर्टिंग HFO हेवी और फर्नेस ऑयल को हम यूज में ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्ट जो है अगर कंपेयर करें लाइट डीजल ऑयल का थोड़ा सा हायर कॉस्ट में है और HFO थोड़ा लोअर साइड में है कॉस्ट के हिसाब से। तो हमारा क्या है थोड़ा सा कॉस्ट वाइज हम देखेंगे तो HFO का यूज करते हुए हम स्टार्टअप का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। उसका फर्दर है कोल कंजम्पशन, कोल बर्नर भी रहता है, कोल बर्नर से भी हमको फर्दर जैसे टेम्परेचर हीट अप हो रहा है तो कोल 1 by 1 कोल बर्नर को हम लाइन पे लेते हैं, उसमें स्टार्टअप को एक्टिविटीज कंप्लीट कर देते हैं। इन केस HFO को आप सपोर्ट ऑयल भी बोलते हैं। अगर इन केस अगर कोल कंजम जो फ्लो है, कोल फ्लो कोई कारण से अगर रुक गया है, मतलब कोल बा जितना क्वांटिटी में कोल फ्लो होना चाहिए उस क्वांटिटी में कोल फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस केस पे जो बॉयलर का जो आपको पैरामीटर्स जो था उसको मेंटेन रखने के लिए हम सपोर्टिंग जो हीट का सपोर्ट है वो हीट सपोर्ट के लिए हम HFO का यूज करते हैं। तो ये आपके जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर हमने बताया है। और आपके एक सुपर क्रिटिकल बॉयलर में टेक्नोलॉजीज, कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स, प्रेशर पार्ट्स, पूरा पैरामीटर्स बॉयलर का जो मैक्सिमम BMCR का जो पैरामीटर्स है वो भी बताया है। तो बॉयलर के बारे में आपको बताया हूँ मैंने अभी। Okay, Pradeep ji, great information regarding this huge boiler. So I think there is much information also needed to know, and in this short span of time, it is really very difficult. And but you did a great job in explaining the boiler. So what about the coal management of this huge plant? And what do you think that how it is to be managed for 4,000 megawatt power plant generation, and what are the various processes and equipments being used in this ultra mega power plants? Can you show some light on that, Mr. Sarkar? यस सर, यस सर। कोल हैंडलिंग प्लांट मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो ये तो एक इम्पोर्टेंट प्लांट है और उसमें साथ जुड़े हुए जो भी इंजीनियर्स हैं उनका पास एक चैलेंजिंग जॉब है कंटिन्यू अभी कोल का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, मतलब आपको इम्पोर्टेंट कोल यूज कर रहे हैं, बस इंडियन कोल भी यूज करेंगे, उसको जो सेटअप है आपको हमेशा स्टॉक में रखना चाहिए। आपकी जो कंजम्पशन है उससे कम से कम 7 डेज तक आपके पास जो स्टॉक में कोल रहना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस है। इनकेस एनी कंडीशन अगर आपको फेवर में नहीं है तो पावर प्लांट में कोल की करंट से आपकी आइदर प्रेशर मतलब कैपेसिटी रिड्यूस करना पड़ेगा व कोल को कंप्लीटली शट ऑफ में लेके जाना पड़ेगा। तो कोल हैंडलिंग प्लांट। Pradeep ji, one more question is that what is the coal consumption in this huge unit? So that also throw light some on that. Okay sir, I will show sir. तो सीजिबल इंटरनल कोल हैंडलिंग सिस्टम्स के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे आपकी। आज देखिए इसमें कोल हैंडलिंग सिस्टम जो कोल यार्ड है, हमारे कोल यार्ड रखा है। कोल का फीडिंग करने के लिए जो बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट को फीडिंग करने के लिए काफी इक्विपमेंट्स भी आपको दिख रहा है नजर में। और जस्ट कोल जो यार्ड है उनके सामने आपको ये भी देख रहा हूँ जो HFO की बात किए थे अभी बॉयलर का, LDO का है उसको स्टोरेज टैंक। तो प्राइमरी फ्यूल हमारा इंपोर्टेड कोल है जो आपके नॉर्मली हम इंडोनेशियन से इंपोर्टेड करते हैं। इंपोर्टेड कोल इज
expected to have ash content in the range of 10 to 15%. जो वन ऑफ द मेन रीजन हम इंडियन कोल को यूज नहीं कर रहा है वो है एस परसेंटेज। एस परसेंटेज का ह्यूज अमाउंट में आपके इंडियन कोल में रहता है कंपेयर टू आपका अगर कोई भी इंपॉर्टेंट कोल आप लीजिए उसमें एस परसेंटेज कम है। तो इसी कारण से हमारे जो मेन जो इम्पोर्टेड कोल यूज करने के लिए एक वजह है। और एवरेज जीसीबी जो है 5400 किलो कैलोरी पर केजी। तो कोल कन्वेइंग सिस्टम हैविंग 2 बेल्ट, हमारे जो कंटिन्यू 24 आवर्स जो कोल का सप्लाई पूरा करने के लिए कोल कन्वेइंग सिस्टम, बेल्ट कन्वेइंग सिस्टम से हम ऑपरेट करते हैं। तो बेल्ट कन्वेइंग सिस्टम का आपको ईच बेल्ट, जैसे 2 बेल्ट है, एक बेल्ट का कैपेसिटी है 3600 टन पर आवर और हाई स्पीड बेल्ट है जिसका स्पीड है 3.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये मतलब जो स्पीड और जो आप कैपेसिटी देख रहे हैं पर टन पर आवर का जो बेल्ट का कैपेसिटी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा जो कितने बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोल हैंडलिंग प्लांट का बेल्ट कन्वेइंग सिस्टम के ऊपर। और आपकी थोड़ा नॉलेज हम और थोड़ा सा ऐड करेंगे जो हमारे इंपोर्टेड कोल जहाँ पे हम जो शिपमेंट होता है, शिपमेंट में हम रिसीव करते हैं, अनलोडिंग करते हैं, जो अदानी पोर्ट है, अदानी पोर्ट के बाद हमारे जो इंटरनल कोल सीएचपी है, कोल हैंडलिंग प्लांट है, उसके डिस्टेंस करीब 14 मीटर है, 14 किलोमीटर है। तो 14 किलोमीटर तक जो कन्वेइंग सिस्टम होता है, हमारे बेल्ट कन्वेइंग सिस्टम अपने पास है, वहीं पे से भी हमारी जो जैसे रिक्वायरमेंट पूरा है वो रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कन्वेइंग बेल्ट थ्रू हम उसको भी करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे कंटिन्यू बॉयलर, आपको बॉयलर के लिए आपको ये कोल सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे 5 यूनिट है, एक यूनिट का जो है 6 कोल साइलो है। तो 6 कोल साइलो, उसमें 5 वर्किंग में है और एक स्टैंड बाई। अगर इनके अगर कुछ कोल बिल में प्रॉब्लम्स आया तो आपको शटडाउन में देना पड़ा, रूटीन मेंटेनेंस या पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए, तो क्या होगा, इससे गांव से एक कोल साइलो जो है आपको स्टैंड बाई में रखा गया था। इस कोल साइलो का कैपेसिटी जो सर अभी बोल रहे थे, उससे एक साइलो का कैपेसिटी है, मतलब कोल्ड स्टोरेज का जो एक साइलो के कैपेसिटी 800 मेट्रिक टन। तो एवरेज कोल कंजम्पशन ऑफ बॉयलर इज 8000 मेट्रिक टन पर डे। तो आपने देखा होगा बहुत काफी क्वांटिटी, बहुत ह्यूज क्वांटिटी है। एक बॉयलर का हम अगर कंटिन्यू फुल लोड में अगर चलाएंगे तो ऑन एन एवरेज जो एवरेज कंजम्पशन है आता है 8000 मेगावाट पर डे का कंजम्पशन आ रहा है। और 5 यूनिट, ऐसे 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट को भी अगर 100% हम जो लोडिंग कैपेसिटी है उससे अगर चलाएंगे तो लगभग 40,000 मेट्रिक टन पर डे का कोल कंजम्पशन है। तो हमने सिर्फ फोकस कर रहा हूँ आपकी कैपेसिटी जो कंजम्पशन कैपेसिटी कितना है 5 यूनिट का। तो ये जो कैपेसिटी है आपकी जो कोल का क्वालिटी है, कोल का क्वालिटी के साथ अगर कंपेयर करेंगे आप 5400 मतलब 5400 किलो कैलोरी जीसीबी है, इससे कोल के लिए एक अमाउंट में अगर हमने अगर इंडियन कोल अगर लिया तो मतलब अगर कंसिडर करेंगे तो और क्वांटिटी कितना बढ़ जाएगा। तो ये क्वांटिटी के ऊपर आपकी एक रफली एक आइडिया मैं दे पा रहा हूँ, मैं ऐसा लग रहा है जो कितनी इम्पोर्टेंट है अपना जो कोल हैंडलिंग प्लांट की, और इंजीनियर के लिए एक चैलेंजिंग जॉब है कंटिन्यू थ्रू आउट जो सिस्टम को लाइफ रखने के लिए। तो ट्रैवलिंग टिपर की एक दिखा रहा हूँ। ट्रैवलिंग टिपर क्या है, जो कन्वेइंग बेल्ट की बात किया था हमने, कोल कन्वेइंग बेल्ट का जो एंड पॉइंट्स है जहाँ पे आपको कोल फीड होगा साइलो पे व कोल बंकर पे, तो उसमें क्या नंबर ऑफ साइलो आपको बताया था 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 साइलो है एक एक बॉयलर पे। तो आपके क्या है उसके जो टिपर, जो ट्रैवलिंग टिपर को हम यूज कर रहे हैं, एक साइलो अगर फिल हो गया तो नेक्स्ट साइलो में जो कोल का फीडिंग पॉइंट चेंज करना, तो ये एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म की थोड़ा सा हमने
आपकी पिक्चर का थ्रू एक कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया है। ये देखिए ट्रैवलिंग टीपा, इसको जो फाइनल फीडिंग पॉइंट्स में जो जिस बंकर में साइलो पे हम कोल फिट करने चाहते हैं उस हिसाब से इसको एडजस्टमेंट किया जाता है, मतलब शिफ्टिंग किया जाता है। तो कोल फ्लो डायग्राम, तो कोल का जैसे आप कोल यार्ड से लेके बॉयलर तक जब आते हैं तो उसको करके कैसे फ्लो होता है, एक सिंगल लाइन डायग्राम में हम दिखाने का कोशिश किया है। कोल यार्ड जहाँ पे कोल स्टोरेज रहता है, एटलीस्ट 7 डेज का हमारा कोल का स्टोरेज रहता है यहीं पे। उसके बाद बॉयलर साइलो, मतलब कन्वेयर बेल्ट थ्रू बॉयलर कोल साइलो पे आकर स्टोरेज होता है, और जो कंटिन्यू मतलब कंज्यूम हो रहा है साइलो टू कोल फीडर में आता है, कोल फीडर का बाद कोल मिल में आ जाता है। तो कोल मिल में क्या है, जो साइज है, जो कोल यार्ड में जो कोल है, कोल यार्ड टू बॉयलर कोल साइलो में जो आ रहा है, तो साइलो का जो फीडिंग जो हम कोल को जो स्टोरेज करते हैं साइलो पे, उसका जो साइज है -50 मिलीमीटर का साइज का कोल जो हम इसमें स्टोरेज करते हैं। उसके बाद कोल फीडर के बाद कोल मिल में उसको पाउडर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो कोल मिल से कोल बर्नर तक आपको कोल को पहुंचाना है, तो इसमें कैसे होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाई प्रेशर एयर, प्राइमरी एयर का हम सपोर्ट लेते हैं। तो कोल प्राइमरी एयर एंड हॉट प्राइमरी एयर दोनों को मिक्स करके, मतलब क्या है, कूल जो है, कूल हो सकता है आपको हॉट प्राइमरी एयर का जो टेम्परेचर अगर हाइट साइड में चले जाए तो हम क्या होगा, उसमें से कोल बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा कोल मिल में। तो जो कोल है, कोल का जो बर्निंग पॉइंट्स है, बर्निंग पॉइंट्स बिलो रखना है। तो पर्टिकुलर जिस कोल का जो कोल बर्निंग पॉइंट है उसको ऊपर डिपेंड करके हमको प्राइमरी हॉट एयर एंड कोल्ड एयर का मिक्सिंग करके जो टेम्परेचर का कोल है एयर है, वो एयर हम इनपुट कराते कोल मिल में, और वहीं से वो आपको कोल का ट्रांसपोर्टेशन करके कोल बर्नर तक लेके आता है। ठीक है, तो ये एक आपका एक लाइन डायग्राम है, जैसे कोल हम कोल यार्ड से लेके कोल बंकर तक कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, किस किस सिस्टम से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो एक कोल मिल आपको दिखा है। तो कोल मिल का स्ट्रक्चर जब कमीशनिंग का वर्क चल रहा था उसी टाइम को लिया है। अदरवाइज क्या है, कोल बर्निंग टेम्परेचर कोल मिल आपको ऐसे दिखने के लिए इतना ओपन नहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि काफी इसके ऊपर भी आपकी इंसुलेशन हो जाता है, और इंसुलेशन का बाद आपकी देखने में थोड़ा सा अलग ही लगता है। तो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने पिक्चर को चूज किया जो कंस्ट्रक्शन टाइम का साथ यूज कर रहा है। तो हम समय कम है, इसलिए हमने कोल यार्ड का जो मेन जो पैरामीटर्स है और जो चैलेंजिंग है, मतलब कोल यार्ड में CHP जो लोग इंजीनियर्स लोग और जो सपोर्टिंग मैन फोर्स में काम कर रहा है, एक आपको व्यू देने के लिए मैं कोल यार्ड के ऊपर थोड़ी सी बात किया हूँ अभी। Great, Mr. Sarkar. So it's good information about coal management system in this big power plant. So since it is a very big plant, so what about the technology and type of turbine used, and who is the supplier of turbine which presently being used in this power plant? So can you throw some light on the turbine? Yes, sir. Yes, sir. Next, okay, sir. Turbine, steam turbine. So this view during construction of our power plant, turbine. So steam turbine rating and design data. Just make a Toshiba type TC4F 42-inch टेंडम कंपाउंड 4 फ्लो 42 इंच आपको लास्ट ब्लेड का जो साइज है वो बता रहे हैं। रेटेड आउटपुट 830 मेगावाट। हमारा
जनरेशन का जो हम कैपेसिटी बताते हैं 800 मेगावाट, लेकिन हम कभी भी इसको 830 मेगावाट तक मैक्सिमम जनरेशन कैपेसिटी लेके जा सकते हैं। मैक्सिमम लोड ऑपरेशन, मिनिमम जो लोड का रिक्वायरमेंट है आपको पूरा पैरामीटर्स को ठीक से मेंटेन करने के लिए 40% लोड आपको चाहिए। और स्पीड जो है 3000 आरपीएम, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज। तो आपको नॉर्मली जो पावर प्लांट है उसका हर टरबाइन का जो आरपीएम लगभग 3000 आरपीएम ही रहता है। तो अगर डायरेक्ट कपल है, इनसाइड में अगर कोई गियर बॉक्स अगर नहीं है टरबाइन और जनरेटर बीच में, तो उनका जो रेटेड स्पीड है डायरेक्ट अगर पावर सप्लाई पावर ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो 3000 आरपीएम होता है, जो आपका फ्रीक्वेंसी है 50 साइकिल वो मेंटेन करने के लिए। फर्दर आ जाते हैं हमने कुछ टेम्परेचर का पैरामीटर्स क्या रहेगा। तो मेन स्ट्रीम इनलेट, मेन स्ट्रीम प्रेशर, एचपी इनलेट, जो हमारा टरबाइन आपको बता रहा है एचपी टरबाइन है, आईपी टरबाइन है, एलपी टरबाइन है। तो मेन स्ट्रीम प्रेशर 242.2 बार एचपी टरबाइन के इनलेट में है। और मेन स्ट्रीम टरबाइन टेम्परेचर, मेन स्ट्रीम टेम्परेचर एचपी टरबाइन इनलेट में 565 डिग्री सेंटीग्रेड। रीहीट स्टीम टेम्परेचर आईपी टरबाइन 595 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक जस्ट वैक्यूम एलपी ए एंड बी टरबाइन के लिए जो एलपी टरबाइन है उनको जो एग्जॉस्ट हो रहा है, एग्जॉस्ट का जो टेम्परेचर जो प्रेशर है 80 मिलीबार एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर केजी में आप बताएंगे तो -0.92 kg per centimeter square। तो -0.92 मीन्स इट इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो कंडेंसर है, कंडेंसर में हम प्रेशर को लो जोन में क्रिएट करने के लिए उसको वैक्यूम में क्रिएट करते हैं, और उसी कारण से आपका वैक्यूम क्रिएट करने के लिए नॉर्मली आप वैक्यूम पंप का भी यूज कर सकते हैं, बस स्टीम एयर रिजेक्टर यूज कर सकते हैं। तो हमारे इधर वैक्यूम पंप की यूज करके हम कंडेंसर का जो पार्ट है, कंडेंसर का जो इनसाइड का जो प्रेशर जोन है, प्रेशर जोन को नेगेटिव प्रेशर में आते हैं, जो केजी में जो है -0.92 kg per centimeter square प्रेशर। तो एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ टरबाइन आर कंडेंसर, वैक्यूम पंप, कंडेंसर एग्जॉस्ट एक्सट्रैक्शन पंप सीईपी, कंडेंसर पॉलिशिंग यूनिट, लो प्रेशर हीटर, हाई प्रेशर हीटर, डिएरेटर, मेन ऑयल पंप, ऑक्सिलरी ऑयल पंप, इमरजेंसी ऑयल पंप, बारिंग गियर, मेन कूलिंग वाटर पंप एनसीडब्ल्यू, ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर पंप एसीडब्ल्यू, हाइड्रोजन कूलिंग सिस्टम एंड सीलिंग ऑयल पंप। तो ये छोड़ के भी बहुत सारा कंपोनेंट इसके बाद हमको मतलब ले नहीं पाया, मतलब काफी समय की कमी है इसे कारण से, और बहुत सारा कंपोनेंट्स है। तो जो भी कंपोनेंट्स हमने लिखा है उसको तो थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लेते हैं, जो मेन पॉइंट्स लगेगा। जैसे वैक्यूम पंप आपका भी बताया था, जो कंडेंसर जो इनसाइड के जो प्रेशर हम नेगेटिव साइड में मेंटेन कर रहे हैं उसे कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए वैक्यूम पंप की रिक्वायरमेंट है। और जो कंडेंसर वाटर को सप्लाई करने के लिए कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप की जरूरत है। वो वाटर का क्वालिटी मतलब फर्दर इंप्रूव करने के लिए कंडेंसर वाटर को पॉलिशिंग यूनिट से हम पास कराते हैं। और रीजेनरेटिव हीट के लिए आपको एलपी हीटर, एचपी हीटर और डिएरेटर का यूज करते हैं। डिएरेटर का ऑक्सीजन एंड अदर डीजल गैस से भी इसमें रिमूव हो जाता है। उसके बाद आपकी जो टर्बाइन्स है और जनरेटर्स है, टर्बाइन और जनरेटर का जो बेयरिंग है, बेयरिंग को हमेशा क्या है आपकी लुब्रिकेशन का सिस्टम के साथ होना चाहिए। अदरवाइज इतने हेवी इक्विपमेंट्स है, हेवी और इतना हाई टेम्परेचर का साथ इक्विपमेंट्स है, तो ये कोई कुछ मोमेंट के लिए भी ऑयल सप्लाई अगर रुक जाएगा तो आपको काफी डैमेज हो सकता है। तो बेयरिंग अगर डैमेज हो गया तो इन केस आपको ब्लेड्स वगैरह भी डैमेज हो सकता है। तो इसको इंश्योर करने के लिए हमने क्या देखिए ऑयल सिस्टम के ऊपर काफी
स्टेप लिया जाता है। जैसे मेन ऑयल पंप है, मेन ऑयल पंप अगर फेलियर हो गया तो आपका ऑक्सिलरी ऑयल पंप जो एओपी बोलते हैं, अगर ये दोनों फेलियर होगा तो इमरजेंसी ऑयल पंप सिस्टम से भी आपको वाटर ऑयल सप्लाई को हम कंटिन्यू रखता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन बनता है, इंस्ट्रूमेशन वर्क काफ़ी इसमें लॉजिक में रहता है, तो ये हमेशा ये सिस्टम आपको रहता है। उसके बाद भी पंप जो है एसी पंप, सभी पंप में जो है हम बात कर रहे हैं एसी एंड डीसी, वो सप्लाई से अलग अलग सेपरेट पंप रहता है, इसमें चल सकता है। उसके बाद आपको बारिंग गियर, बारिंग गियर क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई कहाँ से इमरजेंसी स्टार्ट हुआ व नॉर्मल शट डाउन, कैसे भी आप शट डाउन कीजिए, तो बॉयलर जब स्टैंड, टर्बाइन जब स्टैंड स्टिल हो जाता है, टर्बाइन एंड जनरेटर, तो ऑलरेडी वो बहुत काफी हीटेड रहता है। अगर स्टैंड स्टिल कंडीशन में रखेंगे तो क्या परमानेंटली जो है एक सैगिंग हो जाता है शाफ्ट की, टर्बाइन शाफ्ट व जनरेटर शाफ्ट की परमानेंट सैगिंग हो जाएगा, जिससे कहा से कि दोबारा आप बॉयलर को जब रोल अप करने के जाएंगे तो उनको वाइब्रेशन लेवल है, वाइब्रेशन लेवल काफी हायर साइड में चले जाएगा, जो आपके जो सिस्टम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम जो अलाउ करते हैं माइक्रॉन्स में वाइब्रेशन का लिमिट को अलाउ करते हैं, और विद इन जो है 50 माइक्रोन वाइब्रेशन का रेंज रहता है। अगर मान लीजिए मतलब इन नॉर्मल कंडीशन में हमारे जो वाइब्रेशन मेंटेन होता है 30, मतलब बिलो 30 माइक्रोन के आसपास ही हम मेंटेन करते हैं, और 50 माइक्रोन में क्या है हमारा ट्रिपिंग का मतलब अलार्म आ जाता है, मतलब इंडिकेशन आ जाता है हाई वाइब्रेशन। तो ऐसे आपकी मतलब जो बारिंग गियर तो वाइब्रेशन होने का मतलब संभावना बहुत बढ़ जाता है अगर स्टैंड स्टिल रहेगा, तो इससे तो क्या है कंटिन्यू आपको मूवमेंट देना पड़ता है, आपको हमेशा थोड़ा मूवमेंट देना पड़ता है, तो जिससे कारण से परमानेंट सैगिंग ना हो। ये जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म को हम बारिंग गियर बोलेंगे। मेन कूलिंग वाटर पंप, जो कंडेंसर का जो स्टीम है उसको कूलिंग करने के लिए जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो मेन कूलिंग वाटर पंप से आते हैं, और ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर पंप और फर्दर जो इक्विपमेंट है आपको कूलिंग के जो रिक्वायरमेंट वाटर का चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर पंप भी आपको रहता है। हाइड्रोजन कूलिंग और सीलिंग जो सिस्टम है उसको सीलिंग करने के लिए सील एयर पंप की आपको इंस्टॉल है। तो स्टीम टर्बाइन का एक लाइन डायग्राम आप बता रहा हूँ। पहले एचपी टर्बाइन, ये टर्बाइन आपको स्टीम का 2 एंड से आ रहा है, और इसे आने के बाद जो इसे एडजस्ट हो रहा है, एडजस्ट स्टीम को हम स्टीम को रीहीटिंग करते हैं, जो बॉयलर थ्रू रीहीटिंग हो जाता है। फिर एचपी टर्बाइन का जो आईपी टर्बाइन का तो एग्जॉस्ट है वो एलपी टर्बाइन पे लेके जाता है, और एग्जॉस्ट भी कंडेंसर में पहुंचा देते हैं। तो ये टर्बाइन साइड का एक लाइन डायग्राम है। उसके बाद फर्दर का प्रोसेस तो मैं पहले ही आपको बताया है। तो 800 मेगावाट टर्बाइन का एक हॉल जो सीजीपीएल का है, टर्बाइन हॉल की आपको व्यू दिखा रहे हैं। तो इसमें देखिए ये जो एक बॉक्स टाइप का दिख रहा है उसमें है एचपी टर्बाइन और आईपी टर्बाइन इनक्लोजर, इनसाइड द इनक्लोजर में है, और बाकी जो बाहर में जो देख रहा है ये आपको एलपी टर्बाइन। तो जो इनक्लोजर का है, इनक्लोजर के इनसाइड व्यू में आपको दिखा रहा है आईपी टर्बाइन है और एचपी टर्बाइन। तो एक चीज हमको बात करनी चाहिए आप लोगों से, जो हमारा कूलिंग वाटर सिस्टम का जो पंप्स है उसके ऊपर। तो मैन्युफैक्चरर है केबीएल, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड, और कंक्रीट वॉल्यूट पंप है जो सीवीपी 1800 मॉडल का है। जनरेटेड डिजाइन कैपेसिटी जो है 63,000 मीटर क्यूब पर आवर का जो डिजाइन है इनका डिस्चार्ज को वाटर की कैपेसिटी, और प्रेशर का है 23 मीटर डब्ल्यूसी, रेटेड स्पीड 221, और पंप का एफिशिएंसी 90%। तो वही आपको अभी दिखा रहा है जो इंडिया का जो आपका जो मैं कूलिंग वाटर की पंप बात कर रहा हूँ, ये इंडिया का लार्जेस्ट कंक्रीट वॉल्यूट पंप है।
63 मीटर को इसको डिजायर डिस्चार्ज है। और ऐसे पंप आपको 10 चाहिए। 10 नंबर ऑफ पंप इन लाइन पे लगा रहता है 1 बाई 1, एक एक के लिए अलग अलग चेम्बर जैसे है। और 2 नॉन्स पंप जो है आपकी सिंगल यूनिट 100% कैपेसिटी में रन करने के लिए 2 यूनिट का रिक्वायरमेंट है। और इसमें आपको पहले जो बता रहा था, जो हमारा एक दिन का एक प्रोग्राम है 800 मेगावाट का ऊपर, तो जब ये इंजीनियर्स लोग कोर्स करने के लिए जाते हैं तो उनको हम साइट विजिट कराएं। तो एक स्नैपशॉट भी आपको दिखा रहा है जो साइट विजिट करने का टाइम। और एक काफी मतलब डेप्थ है। ऊपर का जो ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस से ये जो पंप का सरफेस आपको दिख रहा है, ये जो फ्लोर दिख रहा है, ये फ्लोर हमने पंप का जो केसिंग है, कंक्रीट वॉल्यूट केसिंग के ऊपर ही हम खड़े हैं। इसका नीचे जो है पंप, ये आपको ऊपर से जो वर्टिकल शाफ्ट दिख रहा है, ऊपर में मोटर है और नीचे पंप का जो है जस्ट उसका कनेक्शन का एक पार्ट देख सकते हैं, मतलब पावर रोटेशन के बियरिंग्स वगैरह, ऑयल कूलिंग सिस्टम ये सब है। और नीचे की तरफ आपकी पंप है। पंप तो आपको यहीं से विजिबल नहीं होगा। तो मतलब 16 मीटर है यहाँ, मतलब 16 मीटर आपको सी लेवल से 16 मीटर नीचे आपकी ये लेवल पे ये जो विजिट कर रहे हैं आप। तो ये था आपकी टर्बाइन के ऊपर थोड़ा सा जानकारी हमने दिया है। अच्छा, great, Pradeep ji. Thank you very much for this wonderful information. And it's the CW pump are very huge, 63,000 cubic meter per hour discharge. Means अगर ये पंप्स को हम खुला चला दें तो आई थिंक एक रिवर ही बन जाएगा 10 का 10। So it is a great mammoth pump. So now what about the electrical systems, Sarkar ji, in the power plant, because it is a very big power plant. So everything here, it is very big. I am seeing that the boiler is big, the turbine is big, the coal handling plant is conveying coal from 14 kilometers from port to power plant. So it is means every thing is unique here. So what about the electrical systems which is being used? And we are already overrunning 7 minutes. So yes, kindly we have to take question answers also. So kindly if we could complete it at the earliest, so that we will take up the question answers. ओके सर, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, जस्ट उनका हमारा जो वोल्टेज लेवल यूज होता है तो उसमें भी काफी आइडिया लग जाएगा। जो इंजीनियर्स है हमारे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर जस्ट आपके वोल्टेज लेवल, कौन सा वोल्टेज लेवल हम लेवल पे हम यूज होते हैं हमारे पावर प्लांट में, वो हम बता देते हैं आपके। 400 किलो वोल्ट, मतलब 400 kV फॉर पावर ट्रांसमिशन और 220 kV फॉर कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग। जो अभी यूज नहीं हो रहा है, जब पावर कंस्ट्रक्शन फेज में था, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग फेज में, तो 220 kV हमारे भी स्विच यार्ड हमारे पास है। उसका बाद है 26 kV फॉर पावर जनरेशन। तो जो हमारे पास जनरेटर है, जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है 26 kV। तो 26 kV से हमका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम 400 kV अचीव कर लेते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के साथ ही जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है, स्टेशन ट्रांसफार्मर है, तो उसमें जो वोल्टेज लेवल हम मेंटेन करता है 11 kV और 6.6 kV। तो हमारे पास जो ऑक्सिलरीज है, आपने देखा होगा बॉयलर फीड पंप, बॉयलर फीड पंप 11 kV का है और जो एचटी मोटर का रेटिंग है और 18 मेगावाट। तो 18 मेगावाट का एक बॉयलर फीड पंप, उनका वोल्टेज लेवल है 11 kV। मतलब आपके बहुत सारे एक यूनिक जो मोटर भी दिखेगा और इधर अपना फिजिकल प्लांट पे, और एक पंप भी आपको यूनिक देखने को, मतलब इतना हाई कैपेसिटी का बॉयलर फीड पंप।
तो उसका जो वोल्टेज लेवल 11 kV, उसके बाद आपको अभी जो कूलिंग वाटर का पंप की बात किया था, उसका वोल्टेज लेवल 6.6 kV, मतलब जहाँ फैंस में 6.6 kV, जहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी HT मोटर है, उसके में नॉर्मली 6.6 kV का रिक्वायरमेंट पूरा होता है। उसके बाद LT मोटर भी है, सभी तो HT मोटर नहीं रहता है, LT मोटर भी काफी अमाउंट पे है। LT मोटर का 515 वोल्टेज का रेटिंग है, और सिंगल फेज का जो रेटिंग है 330 230 वोल्ट फॉर लाइटिंग एंड सिंगल फेज इक्विपमेंट्स के लिए है। 220 वोल्ट DC फॉर प्रोटेक्शन, कंट्रोल एंड इंडिकेशन, और 24 वोल्ट फॉर पावर सप्लाई DCS एंड वेरियस PLC सिस्टम। तो इसमें अपना दो वोल्टेज का, एक तो AC का वोल्टेज लेवल जो यूज कर रहा है उसके ऊपर बताया, और DC का। DC के लिए हमारे पास जो है UPS सिस्टम्स है, जो कंटिन्यू आपको पावर सप्लाई आपको जो प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए हमेशा रहना चाहिए, उसको हम मेंटेन करते हैं। उसी का हमारा बैटरी बैंक भी है। बैटरी बैंक जो हमारा AC से कन्वर्ट कर देते हैं इन्वर्टर से DC में, तो वो सिस्टम भी हमारे पास है। AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए जो सिस्टम है वो भी हमारे पास रखा हुआ है। तो ये था आपकी वेरियस वोल्टेज लेवल इन आवर प्लांट की, इसको बताएं। तो अभी क्वेश्चन सेशन में हम जाने चाहेंगे। एनी क्वेश्चंस? Okay, Mr. Sarkar. So the questions which we have received are first question is what is a WTP? Water treatment plant. Full form is WTP, water treatment plant. Okay, to cater the requirement of water in power plant, because water se hi we can produce steam. So for that, if we are using sea water here to convert to DM water, which is being used for power generation. So that's Yes. why WTP is there. Then वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो सभी प्लांट में मिलेंगे, छोटे प्लांट और बड़े प्लांट। हमारा जो यूनिक है, हम सी वाटर को कन्वर्ट करते हैं DM प्लांट पे। तो और जो कूलिंग वाटर सिस्टम्स है, तो कूलिंग वाटर जो कंडेंसर कूलिंग वाटर सिस्टम है, सी वाटर यूज करते हैं सर। Okay. So the next question is about the generation, per day generation of the power plants. I would like to answer this question. For any power generation, there is a simple rule, fundamental rule. So in every 100 megawatt, a power plant generates 2.4 million of units per day. So ours is 4000 megawatt power plant. So it is generating 96 million units per day if it is operating at the full capacity, that is 4000 megawatt. So that is there. So I hope that this is clear, what is the generation. So the next question is what are the various question asked is whether pollution control measures are being available in the plant, means the harmful gases which is being released during the burning of the coal. So is there any pollution control measures installed inside the plant? हाँ बिल्कुल, पॉल्यूशन का जो नॉर्म्स है जो वो मेंटेन करने के लिए हमारे पास काफी इक्विपमेंट्स भी लगा हुआ रहता है, जैसे ESP में अब जो एस कंटेंट है, फ्लाई एस, उसको हम अरेस्ट करते हैं। अदर उसमें हमारा जो एक रफ आइडिया आपको देंगे, जो चिमनी से जो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट का जो डस्ट पार्टिकल्स है, SPM जो है, SPM हम 30 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब का जो नॉर्म्स है उसको मेंटेन करते हैं। और एग्जॉस्ट का जो फ्लो गैस की जो टेम्परेचर है वो हमेशा 120 डिग्री सेंटीग्रेड का बिलो हम रखते हैं। लो सल्फर जो कोल है वो हम यूज कर रहे हैं
क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के जो नॉर्म्स है उसको मेंटेन रखने के लिए, और टेम्परेचर जो नाइट्रोजन नॉक्स का जो है वो सॉक्स के लिए है, और नॉक्स के लिए हम कभी भी मतलब टेम्परेचर को काफ़ी जो आपको फैंस बताया था एफडी फैन का क्वांटिटी हम इतना रखते हैं जिसमें जो टेम्परेचर है लोग मतलब जो कोल बर्निंग के जो साइड में जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री क्रॉस ना हो जाए। तो ऐसे काफ़ी सारा मेजरमेंट मतलब कंट्रोल मेजर लेके हम पॉल्यूशन का जो नॉर्म्स है उसको मेंटेन कर सकते हैं। और जो वाटर का जो डिस्चार्ज वाटर है, कूलिंग वाटर वंस टू सिस्टम में जो कूलिंग वाटर जो हम सी में जो डिस्चार्ज करते हैं वो 4 डिग्री से हम ज़्यादा जो डेल्टा टी है 4 डिग्री से बिलो 4 डिग्री एटलीस्ट 4 डिग्री तक हम लेके जाते हैं। अच्छा, इसमें आई वांट टू ऐड मिस्टर सरकार कि whenever you get a permission for any thermal power plant, so in that permission itself it is written that these parameters you have to achieve. So for achieving those parameters of gas emissions means uh, we continuously monitor that, and we have installed various equipments and use the technology so that the parameters are remain inside the allowable limits. Like our coal which we are using, which is an imported coal, it has only 5% of ash content, means 95% of it gets converted into energy. So we are we are getting very less ash, and right now there is more guidelines from environmental, maybe Supreme Court, to reduce the sulfur content. So for that, every thermal power plant is installing flue gas scrubbers so that sulfur content can be reduced in the emissions. So that is the present scenario. Yes, sir. Okay, and one more question is there. What is more important for thermal power plant, coal or water? कोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मल पावर प्लांट के लिए? अगर हम ऐसे बात करेंगे तो वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब ऐसे हम तो अलग नहीं कर सकते, फिर भी हम अगर सिस्टम को रिक्वायरमेंट, अगर हम शॉर्टफॉल की बात करेंगे, कोल अगर खत्म हो जाए या वाटर अगर सप्लाई अगर आप दे नहीं पा रहा तो इम्पोर्टेंट कौन सी है? इम्पोर्टेंस है वाटर की। अगर कोल अगर आपने सप्लाई नहीं कर पा रहा, कोल बैंकर को आपको जो लेवल अगर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली लोड रिड्यूस हो जाएंगे और एक टाइम आएगा जो ड्यू टू कोल आपको प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। अगर वाटर का जो सप्लाई है, जैसे मान लीजिए बॉयलर फीड पंप हम वाटर कंटिन्यू वाटर सप्लाई करते हैं, अगर वाटर सप्लाई अगर किसी कारण से अगर रुक गया और बॉयलर का कोल फीडिंग अगर स्टार्ट रहा है उसी कंडीशन में, तो बॉयलर ओवरहीट हो जाएगा और हाई प्रेशराइज हो जाएंगे बॉयलर, और स्टीम का टेम्परेचर भी काफी बढ़ जाएंगे। जो अमाउंट में जो इनसाइड में स्टीम था, तो मतलब क्या है, ट्यूब ओवरहीट होकर एक बड़ा एक्सीडेंट होने का संभावना है। तो वाटर सप्लाई इज मोर essential by important to coal supply. या करेक्ट। इस पे क्या है कि वैसे तो इनको अलग नहीं कर सकते हैं, ये तो ऐसा ही साथ के साथ रहते हैं क्योंकि दो मेन कंपोनेंट्स हैं जिससे पावर जनरेट होती है। लेकिन वाटर का अगर करना ही चाहें तो वाटर का इम्पोर्टेंस इज मोर in comparison to coal. Yes, sir. So I think we have completed all the questions. So I thank you all the participants for participating in this webinar, and also thank you Mr. Sarkar, our expert, who has imparted this great knowledge in this webinar. So hope we will meet once again in another exciting webinar, or whenever you are looking for getting some trainings to improve your employability skills in core engineering areas. So thank you very much. Thank you,
प्रदीप जी। Thank you, sir. Thanks to all.